Good morning, ladies and gentlemen. I am Dr. Sandeep Nityanand Jha. Today we'll discuss about manifestation. After getting the initial success in my career, I thought to start a world-class university. I purchased the land, I prepared the building plans, I thought about the classrooms, labs, playgrounds, auditorium, and all dams and all the things. And I pasted all the photographs of the buildings and infrastructure in my room, in my office, in my chamber. और हर दिन मैं उसके बारे में सोचता था. More than 15 years, I used to dream about the university, that someday I will start the university. I used to dream about that while sleeping, while eating, while breathing also. हमारे रोम में उसके विचार थे. मैनिफेस्टेशन के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है. One, clarity in thoughts, and the second, detailing. भगवान डिटेलिंग में बसते हैं. जब आप सोते हैं तब आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो सवाल नहीं पूछने वाला, बिकॉज वो तो सो रहा है. लेकिन जो सब कॉन्शियस माइंड है वो कभी सोता नहीं है, कभी सोता नहीं है. एंड देयर इज अ स्मॉल कंपोनेंट इन सबकॉन्शियस माइंड. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोग याद रखें. देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन सबकॉन्शियस माइंड, दैट इज नोन एज रेटिकुलर एक्टिवेटिंग system, RAS. RAS is responsible for realizing your dreams, achieving your goals. और एक बार आपका ड्रीम, एक बार आपका गोल रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में चला गया, no one will stop you from achieving your dream and goals, I'm telling you. Third important factor and very powerful factor, that is power of potential. God has inducted in us immense potential. Every person has got the intrinsic quality. The intrinsic quality present in you may not be present in others. And that is the most difficult task to understand that intrinsic quality. That's why I always say, utilize your potential, and if you fail, don't blame your luck. Don't blame your luck, because you are responsible for everything. आज की तारीख में लोग ड्रीम करते हैं, सब कुछ सोचेंगे, लेकिन अपना गोल नहीं लिखते हैं. अगर मान लो आपने कोई लेटर या कोई लिफाफा या एनवेलप आप कुरियर करते हो, और अगर उसके ऊपर में एड्रेस नहीं है, इनका ठिकाने में पहुंचेगा क्या वो? Therefore, मैनिफेस्टेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, यू शुड राइट द गोल्स. आपको गोल लिखना चाहिए. And you should have short-term goal, you should have mid-term goal and long-term goal. And important thing is that अब जो भी आपका गोल है, जो भी आपका एम्बिशन है, उसका फोटो, उसका इमेज आपके माइंड में तो रहना ही चाहिए. आप उसको कहीं अपने टेबल पे रखें या फ्रेम करके रखें. मैं करता हूं, मैं करते आया हूं. जो भी हमारे ऑफिस में आया होगा, पहले देखा होगा हमारे बिल्डिंग का प्लान सब देखा होगा, सामने में मॉडल सामने में रहता है. So that should be clear. And the another important point about the goal setting is, while setting your goal, you should punch the date. If you don't punch the date, you won't be able to achieve that. Right now also, whenever I delegate any work to my staff, I write it down and I punch the date. This कब तक आप achieve करेंगे, जिसको आप बोलते हो timeline और deadline. Another important point is the power of focus. When I started my career in education in 92, उसके बाद से लेके अभी तक still I'm into education. भले ही मैंने डाइवर्सिफाइड किया सब इन अदर सेक्टर्स, कभी रियल एस्टेट, कभी कुछ ट्रेडिंग, कभी कुछ और सॉफ्टवेयर, बट माय मेन फोकस, माय मेन प्रिंसिपल फोकस was always education, and the result is before you. When I left the public sector job, मुझे 3 साल बहुत परेशानी हुई थी. I was so frustrated. Then someone told me that जो आपका हॉबी है, जो आपका पैशन है, आप उसे अपना लो. बिकॉज हम बिजनेस फैमिली से आते नहीं है,
हम बिजनेस कम्युनिटी से आते नहीं है, मुझे ये नहीं पता था मैं कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूं at the age of 21, 22. Then I asked myself, what is my passion and what is my hobby? My passion was education. And right from 9th standard, I had been teaching tuition. Then I thought to adopt education as my career, and I started in 92 and I got tremendous success. सबसे बड़ा फैक्टर अगर मैनिफेस्टेशन में मैं समझता हूं तो दैट इज द विल पावर. ऑफ कोर्स स्किल इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हर जगह स्किल चलता है, स्किल इज इंपॉर्टेंट, बट आई पर्सनली फील विल इज मच मोर इंपॉर्टेंट, मच मोर पावरफुल देन स्किल. लास्ट पॉइंट बताऊंगा. लास्ट पॉइंट, द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड माई लास्ट पॉइंट, व्हेन आई स्टार्टेड माई करियर for 3 years, that was a very tough period for me, very tough period for me. Then after first, I got very much frustrated that I left my government job. Then I happened to meet, I still remember that man. He was from Thane and I met him in my office. Sinkar Kaka. I miss him today, Sinkar Kaka. He is no more right now. I asked him, Sinkar Kaka, I am very much upset. I am very much frustrated. God has not given me anything. He ruined my life. And all the things I told him. Then I said, what happened? Then I told him clearly that I'm not getting proper break. I'm not getting the outcome what I had thought of. Then he told, इतने लाखों लोग ऐसे हैं इस धरती पे जो रात को सोते हैं, सुबह नहीं उठ पाते हैं वो. अभी फिर हमको कहते हैं, आपने सुना होगा कुछ दिन पहले पेपर में आया था, लू लगने से 10 लोग मर गए. ठंडी में, ठंड हवा से, ठंडी की वजह से सैकड़ों लोग मर गए. कम से कम तुम्हारे पास छत तो है जो तुमको लू और ठंड से बचाता है. फिर हमें कहते हैं वो शिंकर काका, जो अभी क्या करो, ठीक है तुमको भगवान ने कुछ नहीं दिया, कोई बात नहीं है, तुम पेपर पेन निकालो और लिखो तुम्हारे पास में क्या क्या है. मैं लिखना शुरू किया, उनके सामने में लिखना शुरू किया. फिर मैं लिखता हूं जो आई हैव गॉट इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, भगवान ने जॉब भी दिया था, छोड़ दिया जिसको. आई हैव गॉट वेरी वंडरफुल पेरेंट्स, आई हैव गॉट वेरी गुड फ्रेंड्स, सब कुछ बताया. मैं लिखता चला गया, लिखता चला गया, लिखता चला गया. मैंने बोला मेरे पास में आंखें हैं, हाथ, बहुत कुछ लिखा. फिर लिखता चला गया, कितने पेजेस भर गए, इतना दिया भगवान ने. सिंगर काका कहते हैं वापस, वो देखते भी नहीं है, तो लिख लिया ना, हाँ ठीक है तू देख. फिर कहते हैं अगर कुछ भी नहीं दिया ना तो तुम्हारे पास भगवान ने ब्रेन दिया, 2 आंखें दी, बोलने की शक्ति दी, 2 मजबूत हाथ दिए, पांव दिया, लीवर दिया, लंग्स दिया, किडनी दिया. कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनका किडनी फेल है, लीवर फेल है, सूसू तक नहीं कर सकते हैं. क्या कमी है तुम्हारे पास? फिर कहते हैं जो भी है तुम्हारे पास, यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड. भगवान का शुक्रिया अदा करो. क्यों शुक्रिया अदा करो? इफ यू हैव गॉट द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, if you have got the attitude of gratitude, you'll think about those things जो आपके पास में है. आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी. और अगर आप में ग्रैटिट्यूड का सेंस नहीं रहेगा तो आप किसकी तरफ आपका फोकस जाएगा? जो आपके पास में नहीं है. आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आपका माइंड काम नहीं करेगा. दैट्स व्हाई ग्रैटिट्यूड हमेशा हर आदमी को रहना चाहिए. लास्टली मैं बोलना चाहूंगा, एक ही लाइन बोलना चाहूंगा. डिफिकल्ट इज दैट विच कैन बी डन इमीडिएटली एंड इम्पॉसिबल टेक सम टाइम. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू.